सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए आज का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और टॉपिक है फैमिली। आज इस कार्यक्रम में इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एज एक्सपर्ट जुड़े हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर सुकांत महापात्रा जी, जो कि विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। वेलकम सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू। आज हम जो विषय बात करेंगे वो सबके लिए जाना हुआ टॉपिक है, बट हमें इसको फैमिली आज ये सोशियोलॉजिकल टॉपिक इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेसन नंबर 13 है। जैसे हम सोशल ग्रुप के बारे में बात किए हैं, तो फैमिली एक सोशल ग्रुप है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इस दुनिया में हर कोई फैमिली का पार्ट है। हम बोल नहीं सकते कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो फैमिली का पार्ट नहीं है। So all of us are born and brought up in the family. With the birth of children, the size of family gets enlarged. So family is often the focal point, or the center around which our whole life revolves. They say from birth to death, we are all attached to the family. Even suppose कभी बाहर गए होंगे, कोई दिवाली का टाइम या होली के टाइम आपको ये लगता है कि काश में फैमिली में होता तो मैं बहुत अच्छे सेलिब्रेट कर पाता। चाहे आप कोई मार्केट में हो या बहुत अच्छी जगह हो या कोई मेट्रो सिटीज में हो, लेकिन हर कोई सोचता है कि मैं दिवाली या होली हो तो अपने परिवार के साथ निभाऊं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, फैमिली का सिग्निफिकेंस क्या है, फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, then a different functions family will discuss, also various types of family, and then what are changes in family happen throughout the years. Because if you'll ask your grandfather, grandmother what was the family at their time, and if you'll analyze your time, there is far a difference. You'll find lot of difference. So we'll also discuss how industrialization, urbanization and modernization has affected the family system. पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्या है। आज हैव डिस्कस्ड फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। इन द मिनिमल फॉर्म फैमिली may consist of a social group where there is husband, wife and children. In the widest sense, it refers to all relatives of several generations connected to each other by blood, marriage or adoption. जैसे कि फैमिली कहाँ शुरू होता है? फैमिली शुरू होता है, हम बोल नहीं सकते कैसे, बट ए फैमिली यूनिट टेक्स पार्ट विद द लिविंग टुगेदर ऑफ ए लीगली वेडेड couple under one roof. The married couple not only shares the common residence but also cooperate with each other physically, emotionally, socially and economically. जैसे आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे शादी से पहले तुम्हारा तो परिवार शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे मैरिज होता है तो उसके बाद जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों का मैरिज होता है, उसके बाद दे कम इनटू फैमिली सिस्टम। इसलिए बोलते हैं कि अब तो परिवार में आप आने वाले हो। तो जो so what is parivar then? Then the husband and wife, they not only share the common residence, वहाँ पे physical residence नहीं होता है, they also share their connection with physically, emotionally, socially and economically. Thus they fulfill each other's varied needs and aspirations. And the birth of children gives completeness to the family. It further strengthens the affection between husband and wife and their respective families. So now we'll discuss about definition. If we'll see the definition of Bohanan, he defines a family contains people who are linked by sexual and affinal relationship as well as those linked by descent who are linked by secondary relationship. This is by chains of primary relationship. So what are the characteristics of family then? According to William J. Goulday, 1989, he says there are different characteristics. At least one is universality. फैमिली जो सोशल यूनिट इज यूनिवर्सल। सपोज आप जहाँ भी जाओ, आप यूके जाओ या अमेरिकन सोशल सिस्टम को जाओ, इंडियन सोशल सिस्टम को जाओ, जहाँ भी जाओ आपको फैमिली मिलेगा। ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पे आपका फैमिली की यूनिट नहीं है। सो वी कैन से दैट फैमिली इज अ बेसिक यूनिट।
Why it is universal? Because it performs many functions which are indispensable for the individual and society. It performs biological function, it performs economical function, it performs social function and it performs psychological functions. जैसे आप देखेंगे इंडिया में या हिंदू सोसाइटी में कोई भी रिचुअल्स होता है उसमें क्या होता है, आप बोलते हैं कि इफ यू आर मैरिड you can be able to sit in the like homo yajnas, so all these, so therefore family is very important unit of social system. Similar emotional basis, as I told you that family members are emotionally bound to each other. They provide love, care and protection to each other and are ready to make sacrifices for the welfare of फैमिली मेंबर्स. जैसे आप देखे होंगे कब हिंदू मैरिज सिस्टम में या कोई भी मैरिज सिस्टम में, अब देखे होंगे कि जब बहन का विदाई शुरू होता है या अब तब भी देखोगे कि माहौल क्या होता है वहाँ पे. फादर हो या मदर हो या सब वहाँ पे रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोचते हैं कि जो इतना साल तक जो बॉन्डिंग एक दूसरे में था, वो इमोशनल बॉन्डिंग जो था वो धीरे धीरे क्या होगा, इसलिए सबको डर होता है, इसलिए वो सब वहाँ पे they started crying. So because that is the emotional basis. As I also told you, suppose people if you are going on any study tour or any tourist visit, so you may leave your parents in home and they are during Diwali you are far away and they are in home. So even if you are visiting with your friends and colleagues, but still you are feeling that मिस आप शायद घर में होता तो अच्छे से सेलिब्रेट कर पाता, क्योंकि वो जो इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ जुड़ा हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स है. Their limited size. A family is basically made of a husband, wife and their unmarried children. It is a small group and its members is confined to those who are member of that family. Even it is joint family, still the size of family is limited. Then nuclear position in social structure. Family is regarded as the basic nuclear and fundamental to all social groupings. हम बोल सकते हैं जैसे सेट ऑफ स्टेबल स्टेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लार्ज बेसिस ऑफ फैमिली. देन सोशल रेगुलेशंस. फैमिली में देयर में बी नॉट ए लीगल लॉ में नॉट बी देयर बट दैट रॉन्स अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म. जैसे आप एक बेटा हो तो बेटा जब पापा के साथ बात करे एक पर्टिकुलर वे हो ऐसे ही बात करते हैं, या भाई से कैसे बात करना था वो ऑलरेडी सोशल नॉर्म के हिसाब से डिफाइंड होता है. नाउ व्हाट इज नॉर्म? नॉर्म इज एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर. तो वहां पे सपोज आप देखे होंगे, सपोज बहन को कुछ ऐसा बात कर तो पापा बोलते तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें संस्कार नहीं, तुम ऐसे कैसे बात कर. तो संस्कार यहाँ पे दैट इज अ सोशल नॉर्म जो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है. इंटरेक्शन जो एक दूसरे से देख के सीखते हैं. जैसे सपोज एक कोई छोटा भाई है तो बड़ा भाई को देखता है कि वो सिस्टर के साथ किससे बात कर रहा है, या बड़ा भाई देखता है कि छोटा भाई देखता है बड़ा भाई पापा से कैसे बात कर रहे हैं, या पापा और मम्मी कैसे बात कर रहे हैं. तो सो दैट द रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय सोशल रेगुलेशंस. आप कैसे बात करेंगे, या सपोज आप दिवाली में आप ज्यादा पटाखे जलाते हो या ऐसा कुछ करते हो तो पापा बोलते तुम घर में इतने लोग हैं तुम ऐसे कैसे शोर शराबा कर रहे हो. So as a member of family we have to follow social norms and customs in the process of socializations. And it's permanent and temporary nature. The family institution is enduring and universal, but an individual family lasts till the husband and wife are together. Suppose आप देखिए बहुत सारा husband and wife they get married and they form the family, but after sometimes it happens that they get divorced, and if the husband also get go somewhere, so once there is a divorce, and so the family system also get demolished. It is not when you talk about the individual family, so that individual family also becomes temporary in nature. So apart from these major characteristics, there are also there are also some other characteristics with mating relationship. As I told you, a family is born when a man and woman get married according to their prescribed social norms. So here the marriage allows husband and wife to enter into a socially approved sexual union to satisfy their sex instinct.
So we can say that how family get formed, it is through the mating relationship, it is through the marriage alliance the family also got formed. Then common habitation. The family members usually share a common residence in which husband, wife and their children and other relatives live together. Then reckoning of descent is also another characteristics. Like family is basically a bilateral grouping made of husband, wife and relatives on both sides. But the children inherit either father name or property or mother's name and property depending on the local traditions. जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो देयर इज अ मैट्रिलिनियल डिसेंट. जैसे लड़की शादी होता है तो मम्मी के घर रहती है वहां पे. सो वी कैन से दैट सो देयर द डिसेंट इज defined through the matrilineal relationship. But if you go to North India and many parts of India, you'll find that there is patrilineal descent. क्या होता है वहां पे लड़का जो शादी करे तो लड़का अपने पापा के साथ ही रहते हैं. सो हियर the descent is traced to the father line and not the mother line. Then economic system. Every family makes provision to look after the economic needs of member. जैसे स्टेट का अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अपना फैमिली का भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है. तो फैमिली का भी जैसे अपना बजट होता है, उनका जैसे इनकम होता है उस तरह वो भी घर चलाते हैं. सो यू कैन से दैट फैमिली हैज ऑल्सो द इकोनॉमिक सिस्टम. So dear friends, we have discussed different characteristics of family, like family is universal in nature, family has emotional basis, then family is of a limited size. In family there is a nuclear position in all social structure. It has also social regulation. Family is permanent and temporary, also temporary in nature at some point of time. Family has also mating relationship. It has common habitation. It has reckoning of descent, and family has also economic system. Now we can discuss about function of family. जब जैसे स्टेट का फंक्शन होता है, पॉलिटिकल फंक्शन होता है, इकोनॉमिक फंक्शन होता है, रिलीजियस फंक्शन होता है. So like that, family is also social group, so it has also its own function. Like it has biological functions. What are the biological functions? Biological functions are the varied types. The first and foremost biological function of family is the gratification of sexual desire of husband and wife in an orderly and socially approved manner. तो पहला काम ये होता है कि हस्बैंड वाइफ का मैरिज होता है. देन टू फुलफिल द बायोलॉजिकल द ग्रेटिफिकेशन सेक्सुअल डिजायर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रेन. जैसे आप देखे होंगे दैट इज वेरी जनरल टेंडेंसी. सपोज once the couple got married, after 2 to 3 years people ask what is the next plan. So that means the next important biological function is giving birth to children. So in the form of a child, the family gets new generation which inherits the family legacy. And third function is the providing physical protection to its member in all circumstances is yet another biological function of the family. Like physical care and protection of every member, right from the newborn baby to the old and sick member. जैसे घर में छोटा बेबी आता है तो उसका भी केयर प्रोटेक्शन करना, उसको सिखाना कि कैसे आगे बढ़ के सोसाइटी में चलना है. एंड देन घर में जो बूढ़े जो एजेड लोग होते हैं, जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, दैट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट फैमिलीज वुड टेक केयर ऑफ दिस ओल्ड ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. जैसे अब देखे होंगे बहुत सारा मूवी में जो आजकल दिखाया जाता है कि if your grandmother and grandfather are not properly taken care by their son and daughter, then it happens that जो अगली जन्म में ये होता है कि जिससे अब बहुत सारा मूवी में से आता है. So that movie shows that how you have to take care of your grandfather and grandmother when they become old. So taking care of older members in the family also an important functions of the family. Then economic functions, as I told you, family has also own economic system. Family fulfills the economic needs of the member to a certain extent by providing the food, clothing and shelter. जैसे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगा, या घर में जब कोई लड़के उसको एजुकेशन ठीक कैसे एजुकेशन उसका अच्छा करना है. एजुकेशन के बाद उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोज इफ इज नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड इन ए प्रॉपर मैनर, फैमिली का ये भी रोल होता है उनको कैसे घर का जो मुखिया होता है पूरी तरह प्लान करता है फैमिली की चीजों को लेके. यस, हाँ, ये सिमिलरली इफ देयर इज आल्सो कैटल इन होम,
दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ सब आप सपोज पुराना जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा देखेंगे तो जहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिस्टम था तो वहाँ पे हर कोई जैसे हर कोई एग्रीकल्चर का काम करता था वहाँ पे, किसान का बेटा किसान, या ऑटोमेटिकल ट्रेनिंग भी होता था। जैसे घर में पापा जाए तो बच्चे छोटे हैं तो वो भी जा रहे थे देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता था वो देख रहे थे कैसे एग्रीकल्चर, कैसे घर का जो ऑक्यूपेशन आगे लेके बढ़ा के जाना है। हाँ, ये आप देखे होंगे जैसे रूरल सोसाइटी में कोई बार्बर है या कोई दूसरा कम्युनिटी का, वो उसी को काम चलाता था। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली। देन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, जैसे हम आज हम पापा को नमस्ते करते हैं, या घर में कोई जो गुरुजन आते हैं उनको भी नमस्ते करते हैं, उनका बिहेवियर ठीक से कराते हैं, क्योंकि ये दैट इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमें जैसे पापा सिखाते हैं बेटा को, अरे तुम घर में इतने बड़े लोग हैं, आप उनका पैर नहीं छू रहे हो, या आप उनको नमस्ते नहीं कर रहे, आपको बिहेवियर नहीं पता है कैसे बात करना होता है। तो ये सब हम सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखते हैं। तो फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि द चाइल्ड शुड become aware of material as well as non-material aspect of culture. The child learns language, custom, norms and values, beliefs and social roles from different family members. Similarly, mother, father and other relatives also they play a very major role in socializing the child, and they say that how to follow the family functions and norms. Apart from that, psychological function is also an important part of family. Every human beings want love and affection of their fellow human rights from the infancy to old age. Attention and care of family members provide emotional support, stability and security to a person. जैसे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो है दे बिकम delinquent, they are engaged in different kind of other activities which is not socially acceptable. Why? Because the family is not able to play that important aspect. So बच्चे either अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, वेस्टर्नाइजेशन में क्या हो गया, पीपल आर मोर अटैच्ड टू देयर टीवी सेट, आर मोर अटैच्ड टू द मोबाइल, so they are not able to get that much emotional attachment or that much psychological security from the family. जैसे पुराना में क्या होता था, ग्रैंडफादर होते थे, ग्रैंडमदर होते थे, तो वहां पे बच्चे स्टोरी सुनाते थे, या कुछ होता था तो बोलते मुझे पापा मार रहे हैं या मम्मी मार रहे हैं, तो मुझे तो घर में ग्रैंडफादर दोनों जगह प्रोटेक्ट कर बचाते थे। तो दैट इज इमोशनल बॉन्डिंग। तो उनको लगता था कोई तो है जो मेरा केयर करने के लिए वहां पे, जो आजकल बहुत मिसिंग है ये चीज, क्योंकि एक तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो गया, अर्बन एरिया में पापा मम्मी होते, ग्रैंडफादर होते ही नहीं, तो वहां पे बच्चा कुछ सीखने तो ज्यादा, सो ही इज मोर अटैच्ड टू द टीवी सेट एंड कैमरा एंड मोबाइल ऑल दिस। बेसिकली सर मॉम डैड दोनों वर्किंग होते हैं, ये भी एक मुख्य। यस, तो बट हमारा ये होना चाहिए कि वर्किंग है लेकिन उनको भी बच्चों को इतना भी सिखाना चाहिए कि हाउ टू साइकोलॉजिकल एक बॉन्डिंग होना चाहिए, तो जो बॉन्डिंग आगे लेके जाएगा और आपको भी फायदा देगा। तो ये आज हम डिस्कस किए साइकोलॉजी, देयर आर डिफरेंट फंक्शंस लाइक बायोलॉजिकल फंक्शंस, इकोनॉमिक फंक्शंस, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। जी वेल दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम जल्दी ही लौट के आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेने जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से लौट के आते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मुक्त विद्या वाणी। ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार, सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी, मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए आज का सब्जेक्ट है सोशलॉजी और टॉपिक है फैमिली। इस प्रोग्राम में हमारे साथ एज एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर सुकांत महापात्रा जी, जो कि विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं उनका और अनुरोध करेंगे कि पुनः इस चर्चा को प्रारंभ करें। वेलकम अगेन सर एंड ओवर टू यू।
Yeah, dhanyabad. Dear learners, hope you have enjoyed the session. We have discussed about what is family, what are the characteristics of family, what are the different functions of family. Now we'll discuss the types of family. So there are various criteria based on which families can be distinguished. So one criteria is descent, another is residence, membership, number of mates, and authority. So based on descent, there are two types of family. One is patrilineal family, and another is matrilineal family. What is descent? Descent refers to the system by which the members of society or family trace kinship over generation. Patrilineal family क्या है? Patrilineal family is the family wherein the members trace their kinship and lineage through the father or the male members in the family. जो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारा सोसाइटी में बहुत सारी जगह patrilineal family होता है जहाँ पे सपोज जो all we have the trace the kinship and lineage through the father or male members in the family. Suppose जैसे प्रॉपर्टी हो गया था, प्रॉपर्टी जो फादर का जो प्रॉपर्टी था ऑटोमेटिक दैट कम्स टू द सन. जैसे मैट्रिलियन फैमिली में क्या होता है, वेयर इन द मेंबर्स ट्रेस द किनशिप एंड रिलेशंस थ्रू द मदर और द फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली. जैसे लड़की का शादी होता है तो लड़का लड़की के घर आता है तो वहाँ लड़का लड़की के साथ पूरा लाइफ उनका लड़की के घर गुजारता है. दैट इज कॉल्ड मैट्रिलियन फैमिली. सो सच फैमिलीज आर फाइंड अमंग द गैरो एंड खासी ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द नायर मैट्रिलियन इन केरला. Similarly, on the basis of residence, we can say that there are patrilocal family, matrilocal, neolocal, and diolocal. What is patrilocal? In this type of family, after marriage, the wife goes and lives in the family of her husband. This family is also known as very local family. In the other matrilocal family, in this family, after marriage, the husband goes and lives in the house of his family, house of his wife. And what is neolocal family? When the married couple after marriage resides in the new place and establishes family independent of their parents or of the relatives, it is known as neolocal family. And second is diolocal family. In this type of family, after marriage, the wife continues to stay with her mother's family and the husband continues to live with the mother's family. These family are mostly found Nair matrilineal in Kerala and matrilineal in Lakshadweep. These are examples of diolocal family. Now we can discuss about on the membership of authority. There are two types of family. One is patriarchal family, another is matriarchal family. What is patriarchal family? The family in which the father is the formal head and the ruling power in the family is called patriarchal family. जैसे मैं बताया था कि प्रॉपर्टी जो फादर का प्रॉपर्टी होता है that automatically goes to son. And matriarchal family is the family in which the mother is the central figure and her authority is supreme. It is called matriarchal family. Now let us discuss on the basis of membership. There are three types of family. One is nuclear family, one is extended family. Nuclear family is the term. Nuclear family refers to the unit consisting of a married couple and their dependent children. Like we can say that nuclear family is couple with or without children. Then supplemented nuclear family. It indicates the nuclear family plus one or more unmarried, separated or widowed relatives of the parents other than their unmarried children. Then sub-nuclear family is identified as a fragment of a former nuclear family. Suppose आप देखे होंगे जहाँ पे suppose husband का death हो जाता है, so वहाँ पे जो so the wife remains widow. So when there is a family where a widow or widowed with his unmarried children or siblings living together, that is called sub-nuclear family. Suppose वो पहले nuclear family था जहाँ पे husband wife दोनों थे and with their children, but once the husband dies or wife dies, so there is only one member in the family, that is called sub-nuclear family. एंड देन सिंगल पर्सन हाउस होल्ड. अब देखे होंगे अभी बहुत सारे जो आंकड़ा आया है, बहुत सारे जो यंगर जनरेशन चाहते नहीं विल नॉट गेट मैरी because of multiple social regions. So but we can say that is also single person household. We cannot say that there is not a family, that is also single person household. Then supplemented subnuclear family. It refers to a group of relatives members of a formerly complete nuclear family along with some other unmarried, divorced or widowed relatives who are not member of the nuclear family.
आप देखे होंगे बहुत सारे सपोज if a widow and her unmarried children may be living together with her widowed mother-in-law, we can say supplemented sub-nuclear family. Actually, earlier there are only two kind of families. One is a nuclear family, another is a joint family or extended family. But with the changes coming of now, in society, we can say that number of families have increased. The types of family have already increased. If you'll see, there are many news are coming up that many that is in many there are many Bollywood actors. They are not getting married, but they have their children. So the children. yeah, so we can say that these are new kind of families are emerging. Even if you'll see that there are bachelor, they are unmarried, but they want to adopt, they adopt son or daughter. So we can say that they are also the part of family. So that is also a nuclear family, but that is a new kind of changes are coming up. Similarly, joint family. Joint family is that where it is composed of blood and marital relatives of 3 or more generations who identify themselves as a member of a particular family. जैसे आप देखे होंगे 2 भाई शादी कर चुके हैं, but they are staying together with their mother and father and with their, तो हम बोल सकते हैं that is also joint or extended family. And extended family is an extension of a nuclear family, very often by addition of other close relatives. ये सभी बहुत सारे आप देखेंगे सोसाइटी में कि 3 जनरेशन से पहले भी वो लोग दो जो बेटा है, एक ही पापा का बेटा नहीं है, उनको ग्रैंड मदर का रिलेशन है, बट दे आर ऑल्सो स्टेइंग टुगेदर. वी कैन से दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट joint family in India. As you know, the traditional family structure in India has been thought to be that of joint family since ancient age. Suppose of Western society को जाएंगे, so they are very amazed about joint family in India. They say that India में अभी भी joint family है. So that is very uniqueness of Indian society nowadays. No doubt due to industrialization, urbanization, और जो सिटी लाइफ की वजह से जॉइंट फैमिली आर ब्रेकिंग अप, बट स्टिल इट हैज ओन रेलेवेंस. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज एन ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर, द पावर टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द मैटर रिलेटेड. जैसे घर में कुछ होता है तो इट इज ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर, मीन्स घर में कुछ भी होता था तो वहाँ पे क्या होता है, घर के बोलते थे पापा डिसीजन लेंगे या मम्मी जो घर का हेड है वो डिसीजन लेंगे. सो वी कैन से दैट इज ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर, या घर में जो बड़े हैं वो डिसीजन लेंगे. It has familistic organization. It implies that घर में जो भी होता है हम सब फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम कर. सब दिवाली होता है तो हम सोचते हैं घर में जितने लोग हैं सब खुश रहे, सबके लिए कपड़ा हो, सबके लिए पटाखे आए. पटाखे तो आजकल जलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे दिल्ली एनसीआर का पोजीशन क्या है, अभी गैस चैम्बर बन गया है. तो चलो आप कभी पटाखे फोड़ने के लिए सोचो ही मत. इसका अल्टरनेटिव बहुत सारा है, यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट. सो जो घर में जो भी हम प्लान करते हैं, वी ऑलवेज वांट टेक केयर ऑफ ईच वंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स. देन घर में जो जॉइंट फैमिली का क्या होता है कि स्टेटस ऑफ मेंबर इज डिटरमिन्ड बाय देयर एज एंड रिलेशनशिप. घर में जो बड़े होते हैं उनका बात पहले रखा जाता है, या उनको सब पूछते हैं कि कैसा किया जाए, क्या किया जाए. एंड देन ब्लड रिलेशनशिप गेट प्रेफरेंस ओवर मैरिटल रिलेशनशिप. हम हर टाइम ब्लड रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देते हैं, रादर देन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फादर सन और ब्रदर रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट इन जॉइंट फैमिली. द फैमिली फंक्शन द आइडियल ऑफ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी. घर में कोई होता है तो सब मिलके एक दूसरे में हर कोई मिलके उसमें काम करता है. पापा जो कर पाते हैं वो करते हैं, या बेटा जो कर पाते हैं वो कर पाते हैं, या घर में जो मम्मी है या बहू है सब मिलजुल के एक दूसरे का काम करते हैं. ऑल मेंबर्स ऑल्सो गेट इक्वल अटेंशन. ऐसा नहीं कि घर का जो इनकम होता है वो सब उसका हिस्सेदार सब होते हैं, वो जॉइंटली उसमें ही होता है. ऐसा नहीं कि मैं जो ज़्यादा रुपए कमा रहे उनको ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं होता. सबको इक्वल अटेंशन मिलता है वहाँ पे. So that is the uniqueness of joint family system. And joint family is very useful for agriculture and business based families because they are able to get more manpower and pooling of economic resources such as land and money. जैसे आप देखे होंगे रूरल सोसाइटी में क्यों एग्रीकल्चर ज़्यादा सर्वाइव करता है, क्योंकि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर में सब लोग काम करते, पता ही नहीं लगता है कि कैसे दिन गुजर गया, रात हो गए या समय कैसे कट रहा है.
नाउ विल डिस्कस अबाउट, जैसे आप देखे होंगे, जैसे आपको बताया, आप सब जो आपका घर में ग्रैंडफादर है तो उनको पूछिए कि उनके टाइम क्या परिवार का कंसेप्ट क्या था, फैमिली का कंसेप्ट क्या था, या आप आपका पापा को पूछिए कि आप कैसा चेंजेस हुआ, तो देखेंगे बहुत सारा डिफरेंस आया है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग मेट्रो सिटीज में आए हैं, तो अभी वो तो गांव में जो फैमिली सिस्टम था और मेट्रो सिटीज में जो सिस्टम था, सो देयर इज ए मेजर डिफरेंस। इसलिए आप देखे होंगे, सपोज आपका घर में आपका ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगे, तो वो जब भी दिल्ली एनसीआर आते हैं या कहाँ पे आते तो बोलते 1 महीना 2 महीना रहते, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं अपना गाँव जाऊंगा, क्योंकि गाँव में एक भरा पूरा उनका परिवार है जो, और वहाँ पे वो होली दिवाली सब देखे हैं, उनका बचपन वहाँ पे बीता है, तो उनको वहाँ पे अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर एबल टू गेट मोर गैदरिंग इन दैट। और सर सोशली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा। अब बात करेंगे सोसाइटी में फैमिली में कैसे चेंजेस आया, दैट इज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यू विल फाइंड दैट न्यूक्लियरेशन ऑफ फैमिली इज कंसिडर्ड एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. People are migrating to industrial areas, and various kinds of family units have been formed, adding to extraordinary variety to the overall situation. तो जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम था, तो वहाँ पे क्या हर कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था वहाँ पे, बट वंस इंडस्ट्री हैज कम इनटू फोरफ्रंट, सो आप देखे होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ फैमिलीज, जहाँ पे आप देखे होंगे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सो and that's also need, because दोनों suppose Delhi NCR में कोई है, if both husband and wife will not earn, then they are not able to maintain the livelihood. तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मेजर रीजन जिसके लिए जो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज डिसइंटीग्रेटिंग डे बाय डे. Then urbanization is also one important factor in disintegration of joint family, because जो इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द रूरल सोसाइटी, एंड ये भी देखते सपोज हर कोई इनकम नहीं करेंगे, तो फिर हाउ दे विल अर्न देयर लाइवलीहुड, एंड हाउ फैमिली को कैसे फिर आगे बढ़ाना है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर. देन मॉडर्नाइजेशन हैज अफेक्टेड ए लॉट. अब सपोज देखेंगे, जैसे फैमिली में पहले था दिवाली होली, दे आर एबल टू सेलिब्रेट इन ए गेट टुगेदर मैनर. अभी वो कंसेप्ट नहीं रहा, तो अभी क्या हो, सब अपने सोसाइटी के साथ एंजॉय करते हैं उसमें. देन यू कैन फाइंड द चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर ऑल्सो, लाइक अर्लियर जो घर में जो बड़े हैं जो बोलते थे वही होता था उसमें, बट नाउ यू विल फाइंड दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन. सपोज आप घर में देखिए, आज पहले एक ही टीवी के साथ सब देखते थे, रामायण आता था, ये कुछ सब देखते थे, लेकिन आजकल सबका अलग अलग. तो घर में आप देखोगे 4 रूम है, तो 4 में 4 टीवी लगाया हुआ है. कभी बेटा कार्टून देख रहा है, तो पापा देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, और उनका जो वाइफ है वो कोई ड्रामा देख रही है. वो कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई फैशन टीवी देख रहे हैं, तो सबका अलग अलग चॉइस होता है. तो वहाँ पे इसलिए बहुत सारे क्या होता है कि आप देखे होंगे कि इसे जो बताया कि जो ग्रैंडफादर यहाँ पे रहना चाहिए, वो सोचते हैं जो उनको जो सोशलाइजेशन हुआ है, वो सोशलाइजेशन अभी जो वो टोटली डिफरेंट हुआ है. तो इस तरह दे आर नॉट एबल टू मैच ऑफ इन द सोसाइटी. और आप देखिए अभी बहुत बड़ा ये हो गया, मोबाइल मनी आ गया. तो आप देखे होंगे घर में हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो दे और कोई बच्चा है, तो सब मोबाइल देखते रहते हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे जो कभी तो होता है सर, रूम्स में से मैसेज करके बुलाते हैं, जो पहले जो कम्युनिकेशन था कि एक दूसरे से बात कर रहे, वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे. इवन आप बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, हस्बैंड आप दोनों मोबाइल देख रहे हैं. हाँ, तो ये बहुत चेंजेस आया है उसमें. Then some parents don't take care of the children adequately because of their jobs. तो अभी देखिए बहुत सारे बहुत बड़ा मार्केट आ गया है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे आए हैं जहाँ पे बेबी केयर के लिए भी सेंटर खोला गया है. पहले क्या होता था, आपके घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. वहाँ एक सोशलाइजेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट भी होता था. सिमिलरली फील्स द सेम थिंग नाउ हैज हैपनिंग. ओल्ड एज होम हैज ऑल्सो कमिंग अप इन लार्ज स्केल. आप देखेंगे ओल्ड एज होम आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ दोनों के पास टाइम नहीं होता, दे आर टू टेक केयर ऑफ देयर एल्डर पेरेंट्स. सो दैट इज अनदर चेंजेस.
एंड बॉयज एंड गर्ल्स डोंट फाइंड इट नेसेसरी टू मैरी द मेट सिलेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। ये एक बहुत बड़ी चेंजेस आया है कि नाउ द बॉयज एंड गर्ल्स वांट टू, वो अपने हिसाब से लड़का लड़की ढूंढना ज़्यादा पसंद करते ताकि घर के लोग उनके लिए डिसाइड करें। और पहले जो कास्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो भी अभी नहीं रहा। और ये भी होता है कि समय के हिसाब से जो पेरेंट्स दे आर ऑल्सो अकोमोडेटिव, वो भी अकोमोडेट करते हैं, मतलब मेरा लड़का लड़की जहाँ पे शादी करे उसमें वो मान जाते हैं। ये भी चेंजेस है, सम कपल्स आर लिविंग टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड एज इन वेस्टर्न कंट्रीज। अभी जो लिव इन कंसेप्ट आया है, अभी बहुत सारा एक मूवी भी आया है, वो उसमें देखे होंगे कैसे वो दोनों लिव इन रह रहे हैं। दैट हैज बिकम वेरी आल्सो, we can say that has become part and parcel of our marriage system in India also. ये भी है, फैमिली भी ये भी सोचता है कि नहीं लड़का अपने हिसाब से ढूंढे ताकि ये भी ना हो, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से हमारे समाज में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से वो भी सोचते हैं कि शायद मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, तो वहाँ पे ये क्या आता है। और ये भी बहुत सारे चेंजेस है। अब इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप हैज़ बिकम वेरी नैरो डाउन। जैसे अब हम बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग में हम देखते हैं कौन हमें लाइक किया कौन लाइक नहीं किया, लेकिन ये नहीं देखते हमारे सामने जो बंदा है उनके साथ हम कितना टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करें, ना कि ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग में आप रहे, ताकि ये ना हो कि बहुत दिन के बाद आपको आइसोलेशन नहीं फील हुए। अब देखिए कि सुइसाइड रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले जो था कि हमारे साथ कुछ ऐसा इशू होता तो हम डिस्कस करते थे, अपना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ रिलेशन बात करते थे या फादर के साथ बात करते थे, वो कम हो गया धीरे धीरे। इवन बहुत सारे फ्रेंड होता है उनके साथ भी हम नहीं बात कर पाते, क्योंकि हम इतना बिजी होते हैं सोशल वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट या सोशल नेटवर्किंग में या टेक्नोलॉजी के साथ इतना बिजी होते हैं कि हम डिस्कस नहीं कर पाते। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप जो हमारा ग्रैंडफादर है ग्रैंडमदर है उनको केयर करना चाहिए, कि आगे बढ़ के फिर हम क्या सीखें। ये सब सोशल वैल्यूज़ है। ये तो ज़रूरी है हम जो फ्रेंड्स है रिलेटिव्स उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये भी ज़रूरी है हमारे घर में जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं या पापा मम्मी होते हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ टाइम, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए आप देखो सुइसाइड रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि नो वन वांट्स टू टॉक टू अदर पर्सन एंड वी आर मोर attached to technology than the human being, so it is very important. Similarly आपका जो मे बी आप बहुत नेबरहुड का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहले क्या होता था, एक जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत कम होता था। पहले क्या होता, क्योंकि आपका घर में कोई फंक्शन होता तो उसमें पड़ोसी को बुलाते थे, फैमिली का तो ऐसा ही थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो घर के जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी आप बातचीत रखें, और आपका घर के जो पेरेंट्स उनके साथ भी बात करें, ताकि क्या होगा कि एक रिलेशनशिप रहेगा। रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ दैन द टेक्नोलॉजी। सो डियर लर्नर, आई होप यू एंजॉयड द सेशंस ऑन फैमिली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस एंड aosoci@nios.ac.in. And I'll request all of you that now we are running e-learning course on MOOCs on Swayam platform, where you can enroll yourself, and because we are putting all videos audio there, so there you can enroll yourself and pursue the courses in sociology. And if you have any doubt, you can also send a mail to us. So keep in touch, and all the best for the future. Thank you.